Good morning, students. Today I'm going to discuss some of the questions of the chapter Neural Control and the Coordination. First of all, we have to compare the following. First is the central neural system and the peripheral neural system, and the other one is the resting potential and the action potential. So, going to the first comparison, in which we have to discuss about the central whereas the peripheral. To answer this question, let me discuss some of the points from on the basis of which you can classify this central and the peripheral neural system. जो central neural system होता है, it includes the brain and spinal cord in the central nervous system or the CNS, whereas the peripheral nervous system, it includes some of the nerves. We can say that it includes the nerves, okay, which arises from the this brain and the spinal cord. Here, this is a structure, this one is the brain and this is the spinal cord, which are attaches to each other, and from these some of the nerves are arises, which are actually included in this peripheral neural system. Okay, so here in the first point you can see that the central nervous system consists of brain and spinal cord, whereas peripheral nervous system consists of the nerves that arises from the brain and the spinal nerves. Okay, so both of they have nerve cells and glial cells. Brain and spinal cord have nerve cells and glial cells, whereas the nerves, they are 43 in number. 43 pairs are there. 12 pairs are cranial nerves and 31 pairs are the spinal nerves. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द कॉन्टिन्यूस विद ईच अदर, वो हमने पिछले स्ट्रक्चर में ही देखा. देन क्रेनियल नर्व्स टेक देयर ओरिजिन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स. या तो फिर ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है या स्पाइनल कोड से जो है ओरिजिनेट हो रही है. ठीक है, सो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड रिसीव द इंफॉर्मेशन. ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या सेंटर है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचेगी, ठीक है, रिसीव होगी. वेयर एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें जो क्रेनियल नर्व्स होगी, ये स्पाइनल नर्व्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगी एंड गोइंग टू दैट ऑर्गन. ये ब्रेन और स्पाइनल कोड तक इन्फॉर्मेशन कैरी करके पहुंच जाएगी. ठीक है, so central nervous system coordinates all neural function, whereas the peripheral nervous system, it supplies information required for the movement of the muscles. Next I'm going to discuss about the action potential and the resting potential. पहला तो हमने डिफरेंस कर लिया कि कंपैरिजन करना था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में. ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आप लोगों को उसके बारे में एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, विच इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. ठीक है, जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, इट रिलेज impulses from central nervous system to skeletal muscles, and the autonomic transmit the impulses from central nervous system to the involuntary organs. जो सोमैटिक होता है वो वॉलेंट्री एक्शन करता है, मीन्स जो हमारे कंट्रोल के अंदर जो मसल्स होती हैं उन पर एक्शन करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा. जबकि जो ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस मतलब ऑटोनॉमिकली, जैसे कि हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होती है लाइक द मूवमेंट ऑफ स्टमक. ओके, सो इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू और रिले ऑन द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. ठीक है, ये जो है नर्व इम्पल्स लेके आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और इन्वॉलेंट्री ऑर्गन तक पहुंचाता है. ठीक है, कैरी करने का काम है. और ये किसके अंदर आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ही पार्ट है. ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक एंड देयर इज पैरासिम्पैथेटिक. टू टाइप्स की होती है. ठीक है, ओके, सो
Going toward the next question, which is about the difference between the action and the resting potential. So going to that question, we have to know about the mechanism of this potential. जो ये कि एक action और resting potential होता क्या है, पहले एक थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. So our neurons are polarized. पोलराइज्ड पोलर होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इनके बीच में. हाउ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दिस इज द इनर इन्वायरमेंट, ठीक है. एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम ऑफ द आइंस. कुछ आइंस के लिए परमिएबल है और अदर्स के लिए इम्परमिएबल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज negative charge on the inner surface of the cell membrane, ठीक है, because there are some proteins which has negative charge, and whereas in the outer side there are sodium ions which are positively charged. So that's why there is accumulation of positive charge. So we can say that कि ज़्यादा charge जो है वो positive का है on the outside environment due to this sodium ions, ठीक है. Here some of the potassium ions are also there, but the concentration is very low, ठीक है. So this one is called resting potential. इस स्टेज को हम बोलेंगे जब आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है. इट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल. अब जैसे ही इनको कुछ थ्रेशोल्ड मिलता है, मीन्स कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये आयंस का जो डिफरेंस है वो टूट जाता है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम एंड पोटाशियम पंप, ठीक है, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ द आयंस टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो पहले तो मैंने बता दी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस. पहले इसको एंटर नहीं करने दे रही थी, दैट इज़ वाई देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द सोडियम आयंस टू इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट. और इनर साइड में पोटाशियम आयंस से यहाँ पे इम्परमिएबल अभी, ठीक है. सो दे आर मोर परमिएबल. जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयंस एंड लिटिल बिट परमिएबल टू सोडियम आयंस. हाउ, जब इनको कुछ थ्रेशोल्ड मिलता है जिसकी वजह से इनके आयंस के बीच में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि यहाँ से पोटाशियम आयंस जो होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और जो सोडियम आयंस होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है. एक थ्रेशोल्ड मिलने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो सिलेक्टिवली अलाउ कर देगी सोडियम आयंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन आने के लिए, ठीक है. सो देयर इज़ ऑलवेज जो पोटाशियम आयंस हैं 3 सोडियम आयंस के बदले 2 पोटाशियम आयन जो हैं वो बाहर जाएंगे, ठीक है, विच ट्रांसपोर्ट द 3 सोडियम ions and जो 2 potassium ions they are going to the outwards. Okay, so there is formation of there is actually change of the now ions. यहाँ पे आयंस की जो अभी नेगेटिव, वो एक साइड नेगेटिव बना हुआ था, एक साइड पॉजिटिव बना हुआ था. इस चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. सोडियम और पोटाशियम जो है इन दोनों के चेंजेस होने की वजह से देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है. अब क्या होगा, अब अगर सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है. अब इनर साइड पे क्या है, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होना शुरू हो रही है जब सोडियम का इनटेक हो रहा है, धीरे धीरे इनटेक करेंगे, ठीक है. अभी यहीं पे पॉजिटिव है, बाकी जगह नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, आउटसाइड नेगेटिव आ रहा है, ठीक है. तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे जो है ये पॉजिटिव आयन बढ़ता जाएगा एंड ऑल द इनर वॉल और वी कैन सी द इनर साइड सरफेस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड पोलराइज स्टेट, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड which is called repolarized state, or we can say that action potential. What it is? Action potential. Okay,
तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल में जब यहाँ पे इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज था और आउटर साइड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो दैट इज रेस्टिंग पोटेंशियल और द पोलराइज्ड। and the electrical potential difference across the plasma membrane at the site A, we can consider this state is A, ठीक है, it is called action potential, ठीक है, which in fact generate a, or we can say that it is termed as a nerve impulse, okay, नर्व इम्पल्स। और ये नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती जाएगी आगे, जो है पॉजिटिव चार्ज जो आपको पता है, पहले मैंने इस पॉइंट पे बताया था, यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज था, धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे और भी पॉजिटिव चार्ज आने लगा, क्योंकि सोडियम आइंस की एंट्री हो रही है, एंट्री हो रही है अंदर की तरफ, और जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ओके। सो नाउ व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज द points of the resting potential, which is also called polarized state. When the neuron is at the resting phase, it is the potential difference across the membrane. The exterior side of the neuron is positively charged while the interior side is negatively charged. ये हमने पहले देखा था कि इंटीरियर साइड जो है वो नेगेटिव होगा और जो एक्सटीरियर साइड है वो पॉजिटिव साइड की होगी, ठीक है। Permeability of the K positive ion is observed to be more by the plasma membrane of the neurons. So जो के पॉजिटिव यानी कि जो पोटाशियम आयंस थे वो मूव कर सकते थे, वो परमिएबल थे रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेज में, बट सोडियम आयंस की एंट्री अलो जो है वो नहीं हो सकती थी। To maintain the resting potential, the sodium potassium ATPase pump is activated, sending sodium ions outside the neuron, okay. So what is in the action potential, action potential में क्या difference होगा, when the neuron is triggered, it is potential difference across the membrane. अब जब nerve impulse generate होगी, it is the potential difference created. So the exterior side of the neuron is negatively charged and the interior side of the neuron is positively charged. अब क्या हो जाएगा, अंदर साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज सोडियम आयन सारे के सारे अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, और 3 सोडियम आयंस अगर मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, पोटाशियम आयंस भी तो आ रहे हैं, बट दे कमिंग आउटसाइड कम में आ रहे हैं, ठीक है, कम क्वांटिटी में आ रहे हैं, और सोडियम आयन ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर जा रहा है। Permeability of the sodium ions is observed to be more by the plasma membrane of the neuron. It function in a reverse pattern wherein the sodium potassium ATPase pump sends sodium ions into the neuron, ठीक है। तो यहाँ पे also ATPase is there, जबकि आपने रेस्टिंग पोटेंशियल में भी एटीपीएस सुना था, तो एटीपीएस पंप में जो है इसमें एटीपी की भी एनर्जी की भी जो है वो ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो एक्शन और रेस्टिंग में क्या डिफरेंस आप लोगों ने देखे कि देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके, दोनों में ही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पहले जो था न्यूरॉन हमारा रेस्टिंग फेज पे था, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल में क्या है, न्यूरॉन ट्रिगर्ड है, न्यूरॉन को कुछ थ्रेश होल्ड मिल चुका है, ओके। और अब क्या होगा, रेस्टिंग में क्या था, पॉजिटिव वाली साइड जो है वो इनर साइड, सॉरी नेगेटिव वाली साइड जो थी वो इनर साइड थी, पॉजिटिव वाली आउटसाइड थी। वेरस जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे उल्टा हो चुका है, एक्सटीरियर साइड पे नेगेटिव है, इंटीरियर साइड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। एंड देन परमिएबिलिटी ऑफ द सोडियम आयन इज मोर, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 सोडियम आयंस के बदले, ठीक है, 3 सोडियम आयंस अंदर जा रहे हैं और 2 पोटाशियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, जबकि रेस्टिंग में क्या था, पोटाशियम जो था परमिएबल था, उस कंडीशन में वो बाहर जा सकता था, बट सोडियम आयन जो है उसके लिए परमिएबल नहीं था, सेल मेम्ब्रेन उसको परमिट नहीं कर रही थी, ओके। So students, today we discuss about the central nervous system and peripheral nervous system, and along with that we also study about the nerve impulse, how it is generated, and what are the resting potential and action potential. Resting तो as you know that rest की position में है जब neuron, और action potential में neuron is triggered, and what are the other processes that also occurs during this in the neuron.
So all the things are discussed here, and in the next lecture I also discuss about the other things which are related to this chapter. So thank you so much for watching the video.